علاقائی کھیلوں کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سماجی شخصیت چودھری خالد پرویز فٹ بال، ہاکی، کبڈی اور دیگر کھیلوں کو پروموٹ کرنے اور گراؤنڈ آباد کرنے کے لیے متحرک ہو گئے۔ مختلف ٹورنامنٹس میں کھلاڑیوں میں لاکھوں روپے کے انعامات تقسیم کیے۔ ولیج فٹ بال ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب کا احوال بتا رہے ہیں نمائندہ اونیس مشتاق احمد قادری۔ ڈیجی کوٹ کے نواحی گاؤں 248 رے بے بسم اللہ پور میں ولیج سسٹم کے تحت فٹ بال شاندار فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوا، جس میں علاقہ بھر کی 36 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ چک 41 اور 279 اروڑی کی ٹیموں کے مابین ہوا، جو پینلٹی ککس پر 279 رے بے کی ٹیم نے جیت لیا۔ فائنل میں 41 کی جانب سے انٹرنیشنل فٹ بالر حسنین شاہ نے بھی حصہ لیا۔ تقریب تقسیم انعامات شاندار طریقے سے منعقد کی گئی۔ فائنل کے مہمان خصوصی چودھری خالد پرویز گل کا گراؤنڈ آمد پر شاندار استقبال کیا گیا۔ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے۔ بہترین کھیل پیش کرنے والوں کھلاڑیوں میں نقدی انعامات اور شیلڈ تقسیم کی گئی۔ فائنل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رہنما نون لیگ چودھری خالد پرویز گل نے کہا ہے کہ گراؤنڈ آباد کرنا اور اسپتال ویران کرنا میرا مشن ہے۔ ڈیجی کوٹ اور گردنواہ میں کھلاڑی مجھے جہاں بلائیں میں حاضر ہوں۔ نشے کی لت سے نجات کے لیے گراؤنڈ آباد ہونا ضروری ہے۔ علاقے بھر میں علاقائی کھیل کبڈی، والی بال، ہینڈ بال اور دیگر کھیلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے میری خدمات حاضر ہیں۔ آخر میں انتظامیہ بسم اللہ پور فٹ بال کلب کو کامیاب ٹورنامنٹ کے انعقاد پر مبارکباد دی۔ شائقین 5 دن جاری رہنے والے ٹورنامنٹ سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ مری سے راجہ عباس نواز کی رپورٹ کے مطابق مری NA-51 لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ 36 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جانچ پڑتال کے بعد منظور ہوئے۔ 7 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ PTI کے سابق MPA میجر لطاسب ستی کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ تحصیل صدر PTI سہیل عرفان عباسی کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد۔ غلام مرتضیٰ ستی کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد۔ PTI کے تقریباً سب امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ PTI کے سینئر رہنما سردار محمد سلیم خان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے۔ ریٹرننگ آفیسر ڈسٹرکٹ مری کی جانب سے فائنل لسٹ جاری کر دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں فیاض کھوسہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف مجسٹریٹ۔ اس رپورٹ میں ڈیرہ غازی خان بارڈر ملٹری پولیس کے سربراہ کمانڈنٹ محمد اسد چانڈیا کا اسمگلروں کے گرد گھیرا تنگ، اسمگلنگ کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن۔ ڈیرہ غازی خان راکھی گاچ میں کمانڈنٹ محمد اسد چانڈیا نے SHO لیاقت عباس لغاری کے ہمراہ بلوچستان سے پنجاب اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بھاری مقدار غیر نان کسٹم پیڈ سامان کو پکڑ کر اپنی تحویل میں لے لیا۔ نان کسٹم پیڈ سامان کو بلوچستان چمن سے پنجاب لاہور اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اسمگلنگ کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ نان کسٹم پیڈ سامان کو قانونی پروسیس کے بعد کسٹم حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں فیاض کھوسہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی۔ اس رپورٹ میں ڈیرہ غازی خان بارڈر ملٹری پولیس کے سربراہ کمانڈنٹ محمد اسد چانڈیا کا ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن۔ قبائلی علاقے میں بارڈر ملٹری پولیس کے سربراہ کمانڈنٹ محمد اسد چانڈیا نے کارروائی کرتے ہوئے ایرانی ڈیزل سے بھرا ٹرک اپنی تحویل میں لے لیا۔ ایرانی ڈیزل کی بھاری مقدار ٹرک میں بھوسا میں چھپا کر اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تقریباً 50 لاکھ روپے مالیت کا 15,000 لیٹر سے زائد ایرانی ڈیزل بلوچستان سے پنجاب اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایرانی ڈیزل سے بھرپور ٹرک کو کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ اسمگلنگ کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے بیورو چیف خالد منجو کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جیکب آباد کے الیکشن میں کامیاب ہونے والے بار کے صدر سینئر ایڈوکیٹ میر احمد نواز خان پچوہو، ایڈوکیٹ کامران علی پچوہو، ایڈوکیٹ سید اعجاز علی شاہ کو NA-190 کے امیدوار سردار محمد میاں سومرو، سردار سخی عبدالرزاق خان کھوسہ، اصغر خان پنہور، حاجی غلام نبی رند اور دیگر پچوہو ہاؤس پہنچ کر منتخب ہونے والے صدر احمد نواز پچوہو کو پھولوں کی مالا پہنا کر مبارکباد دی۔ اب خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ اون نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف ڈاکٹر رمضان چودھری کے کزن اور پیر محل پریس کلب کے چیئرمین میاں اسد حفیظ کے چھوٹے بھائی معروف زمیندار میاں آصف حفیظ کی دعوت ولیمہ مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ ولیمہ میں سابق وفاقی وزیر چودھری اسد رحمان، سابق MPA سید قطب علی شاہ المعروف علی بابا، سابق چیئرمین بلدیہ پیر محل چودھری خالد سردار، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پیر محل کے صدر ڈاکٹر رمضان چودھری، میاں طارق ریاض آف اکاڑہ، سینئر سول جج خانیوال میاں حسن طارق، میاں عبدالغفار لاٹھیاں والا، صدر پریس کلب پیر محل چودھری سرور انجم، سابق ممبر ضلع کونسل مہر مشتاق احمد گرو، ایڈوکیٹ مہر رفیق نوہانا، ایڈوکیٹ شاہد زیب سرگانہ، ایڈوکیٹ اعجاز گرو، میاں خالد فاروق آف برطانیہ، معروف بزنس مین چودھری عبدالغفار
سابق SDO وابٹا سید خاور عباس شاہ، میاں امجد لطیف آف اسلام آباد، میاں اختر جاوید ایڈوکیٹ، چیئرمین خدمت خلق میاں محمد طارق، میاں زین سعید آف اسلام آباد سمیت کثیر تعداد میں سماجی اور سیاسی شخصیات نے خبر شامل کرتے ہیں روشنیوں کے شہر کراچی سے، جہاں کراچی سے ہمارے اسپیشل رپورٹر جاوید محمود رائی کی رپورٹ کے مطابق SSP آفس آپریشن ضلع کورنگی پولیس کے کانفرنس ہال میں ہنگامی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کی قیادت SSP ضلع کورنگی حسن سردار نیازی نے کی، جس میں دیگر افسران موجود تھے۔ اجلاس میں تمام تھانے داروں سے ایک ماہ کے دوران کارکردگی کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ SSP کورنگی نے کہا کہ اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں، گٹکا منشیات فروش اور مفرور اشتہاری ملزمان کی زیادہ سے زیادہ گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں۔ جرائم پیشہ کی سرپرستی میں کسی بھی آفیسر یا اہلکار کے ملوث ہونے پر سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ SSP کورنگی نے کہا کہ سال نو کے موقع پر ہونے والی فائرنگ کی روک تھام کی اس آگاہی مہم کو جاری رکھا جائے۔ مساجدوں اور پولیس موبائلوں میں اسپیکر لگوا کر ہوائی فائرنگ سے اجتناب کے اعلانات کروائے جائیں۔ سال نو کی شب ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے لیے سادہ اور باوردی اہلکاروں کو تعینات کیا جائے۔ جس علاقے میں ہوائی فائرنگ ہو، اس علاقے میں فوری سرچ آپریشن کروایا جائے اور ملزم کو فوری گرفتار کیا جائے۔ جس علاقے میں ہوائی فائرنگ سے کوئی شخص اندھی گولی کی زد میں آیا اور ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا، متعلقہ تھانے دار کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے، جہاں سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف میر قمر بلوچ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری کی گڑھی خدا بخش میں شہدائے جمہوریت کے مزارات پر حاضری۔ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پر فاتحہ خوانی کی۔ صدر آصف زرداری نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پر پھول بھی چڑھائے۔ صدر آصف زرداری نے شہید میر شاہ نواز بھٹو اور شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے مزارات پر بھی حاضری دی۔ صدر آصف زرداری کی شہدائے جمہوریت کے مزار پر پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی اور ملک کے معاشی استحکام کے لیے دعائیں کی۔ خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے، جہاں سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف میر قمر بلوچ کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ بی بی آصفہ بھٹو زرداری اور صنم بھٹو کی گڑھی خدا بخش آمد۔ بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے اپنی خالہ کے ہمراہ اپنی والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی مزار پر حاضری دی۔ بی بی آصفہ بھٹو زرداری اور صنم بھٹو نے قائد عوام شہید بھٹو اور مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کی مزاروں پر بھی حاضری کی۔ بی بی آصفہ بھٹو زرداری اور صنم بھٹو نے شہید میر مرتضیٰ بھٹو اور شہید شاہ نواز بھٹو کی مزاروں پر بھی پھول چڑھائے۔ بی بی آصفہ بھٹو زرداری اور صنم بھٹو نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سمیت تمام شہداء کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی اور دعا کی۔ خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے، جہاں سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف میر قمر بلوچ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی گڑھی خدا بخش میں شہدائے جمہوریت کے مزار پر حاضری۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پر فاتحہ خوانی بھی کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے شہید میر مرتضیٰ بھٹو اور شہید میر شاہ نواز بھٹو کے مزارات پر بھی پھول چڑھائے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کی قبر پر بھی حاضری دی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے شہدائے جمہوریت کے مزار پر ملکی سلامتی، جمہوریت کی بالادستی اور معاشی استحکام کے لیے دعائیں۔ کراچی اسپیکر سندھ آغا سراج خان درانی نے صدر سعید سربازی سیکرٹری شعیب احمد کو کراچی پریس کلب کے انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ ڈیموکریٹس پینل کی کامیابی کراچی پریس کلب کے ممبران کے اعتماد کا ثبوت ہے۔ آغا سراج خان درانی صحافی برادری کے فلاح اور بہبود کے لیے بھرپور اقدامات کی امید ہے۔ کامیاب آنے والے پینل سے آغا سراج درانی پیارے بڑے بھائی سعید سربازی کو صدر کراچی پریس کلب منتخب ہونے پر آن نیوز چینل کی ٹیم کی طرف سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ صحافیوں کے حق میں ہمیشہ سعید سربازی آگے رہیں گے۔ منتخب شامل کرتے ہیں منچن آباد سے، جہاں سے ہمارے رپورٹر عبدالرحمان گرو شیخ کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر منچن آباد احمد جاوید چیمہ خدمت انسانیت کے حوالے سے عمدہ مثال قائم کرتے ہوئے خون کا عطیہ دینے ہسپتال پہنچ گئے۔ سوشل میڈیا پر ایک مریض کے بلڈ کی اشد ضرورت کی اپیل کی گئی، جس پر اسسٹنٹ کمشنر احمد جاوید چیمہ نے خود کال کر کے خون عطیہ کرنے کی آفر کی اور اپنے دفتر سے سیدھے ہسپتال خون ڈونیٹ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد جاوید چیمہ نے بلڈ عطیہ کر کے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر شہری کو بلڈ عطیہ کرنا چاہیے تاکہ کسی کی قیمتی جان بچائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دین اسلام انسانیت کی فلاح اور بھلائی کا درس دیتا ہے اور انسانیت کی رسپیکٹ کریں اور جتنی کوشش ہو سکتی ہے انسانیت کے لیے اچھے اقدامات اٹھائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔
कराची निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर का कराची प्रेस क्लब के इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। सदर सईद सरबाजी, सेक्रेटरी शेब अहमद, नायब सदर रशीद मेमन समेत तमाम अहदेदारों को कामयाबी मुबारक हो। निगरान वज़ीर आला सिंध इंतखाबी अमल जमहूरी निज़ाम हसन है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को मुंतखब के पीसी अवामी नुमाइंदगी करते हुए सहाफ़त का अलम बुलंद रखेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध, मुझे उम्मीद है नौ मुंतखब पैनल सहाफ़ियों बेहतर तरीके से खिदमत करेगा। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भून ने कहा है कि मसनूई और खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद और मुकर्ररा नरखों पर मयारी अशिया खुर्दनोश की फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म की वो ज़ाती तौर पर हर लम्हा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमने आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम करना है। ये बात उन्होंने DC ऑफिस बहावलनगर के कॉन्फ्रेंस रूम में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी के जायजा इजलास से खिताब करते हुए कही, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। ज़ुल्फ़िकार अहमद भून ने कहा कि अवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। असिस्टेंट कमिश्नर अशिया की कीमतों, तलब और रस्त की कड़ी निगरानी करे और नाजायज़ मुनाफाखोरी, ग्राम फरोशी में मुलव्वस अफराद से सख्ती से निपटा जाए। इजलास में डिप्टी ज़ुल्फ़िकार अहमद भून ने हिदायत की कि अशिया खुर्दनोश में मिलावट करने वाले नासिर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए और मिलावट के मकरूह धंधे में मुलव्वस अफराद को करार वाकई सजा दिलवाई जाए। इजलास में तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की इनफरादी कारकर्दगी का भी तफसीली जायजा लिया गया है। चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ साहिवाल की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल रीजन पुलिस को अपनी जिंदगी के 37 साल देकर प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद अयूब सब इंस्पेक्टर अल्लाह यार रिटायर्ड हो गए। इनकी रिटायरमेंट के मौका पर RPO ऑफिस साहिवाल में एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल महबूब रशीद और SP RIB मोहम्मद ज़ियाउल हक, SP लीगल अब्दुल वहीद, ADIG मोहम्मद अहमद रजा के अलावा जुमला इंचार्ज ब्रांचेस ने शिरकत की। प्राइवेट सेक्रेटरी राव अयूब और सब इंस्पेक्टर अल्लाह यार को महकमा पुलिस से पुरवकार तरीके से रुखसत किया गया और इनकी आइंदा जिंदगी के लिए सेहत और सलामती के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर पुलिस अफसरान ने रिटायर्ड होने वाले प्राइवेट सेक्रेटरी राव अयूब और सब इंस्पेक्टर अल्लाह यार को फूल और तोहफे भी दिए। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल महबूब रशीद ने रिटायर्ड होने वाले अफसरान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और इनकी साहिवाल रीजनल पुलिस के लिए दी गई खिदमत को सराहा। इस मौके पर इनका कहना था कि साहिवाल रीजन की पुलिस को दी गई खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वो हमारी पुलिस फैमिली का हिस्सा हैं और हम इन्हें हमेशा याद रखेंगे। आखिर में उन्होंने हेड कांस्टेबल मोहम्मद फैसल को क्लरिकल स्टाफ में बतौर जूनियर क्लर्क सेलेक्ट होने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए रुखसत किया। चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ साहिवाल की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल कागजात नामजदगी नून लीग के तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 141 से PTI के राना आमिर शहजाद के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 141 से चौधरी अनवारुल हक साबिका आर्मी चीफ ज़ियाउल हक के बेटे और चौधरी एजाजुल हक के भाई के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 141 में PTI के अनवारुल हक रामे के कागजात नामजदगी मुस्तरद। PTI के NA 142 चौधरी मोहम्मद आसिफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 142 से नून लीगी चौधरी अशरफ, गुलाम फरीद काठिया, आयशा अरशद लोधी, जाहिद इकबाल के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 143 से PTI के राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा इकबाल, राय इकबाल के कागजात नामजदगी मुस्तरद। PP 199 मलिक नदीम कामरान नून लीग, राना जावेद निसार, तैयब खान बलोच, राना आमिर शहजाद के कागजात नामजदगी मंजूर। PP 202 से PTI के चौधरी वहीद असगर के कागजात नामजदगी मंजूर। PP 203 से राय मोहम्मद इकबाल के कागजात नामजदगी मुस्तरद। PTI के PP 204 से साबिका MPA मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। PTI के PP 201 मोहम्मद यार डमरा के कागजात नामजदगी मंजूर। PP साबिका जनरल सेक्रेटरी PTI 200 फैसल जलाल डिक्कू के कागजात नामजदगी मुस्तरद। PTI के PP 199 राना आफ्ताब अहमद के कागजात नामजदगी मुस्तरद।
इंतजार की घड़ियां खत्म, गोजरा में भी आम इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर, कागजात मंजूर होने वाले उम्मीदवारों की जानिब से जश्न, मिठाइयां तकसीम। NA 105 से तकरीबन 24 के करीब उम्मीदवारों में से 20 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर, 4 के मुस्तरद कर दिए गए, जबकि PP 119 से तकरीबन 22 उम्मीदवारों में से 19 के कागजात मंजूर, जबकि 3 के मुस्तरद, और PP 120 से 30 के करीब उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा करवाए। तमाम उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल के बाद 25 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर, जबकि 5 उम्मीदवारों के मुस्तरद। इनकी हतमी लिस्ट अवेसा कर दी गई है। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, बताइएगा गोजरा के हलकों से कितने उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए, कितनों के मुस्तरद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। गोजरा आम इंतखाबात NA 105 से तकरीबन 24 के करीब उम्मीदवारों ने इलेक्शन के लिए अपने कागजात जमा करवाए। गोजरा के तमाम उम्मीदवारों की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद तकरीबन 20 के करीब उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार पाए गए। गोजरा बाकी तकरीबन 4 के करीब उम्मीदवारों के कागजात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुस्तरद कर दिए गए। गोजरा के हल्का NA 105 से कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में अरसलान खान मंज, गुलाम रसूल, ताज महमूद, चौधरी खालिद जवेद, हसाम अली, सरशार हसन चीमा, अब्दुल रऊफ, अब्दुल कदीर अलवी, अरफान गफूर, अताउल्लाह हमीद, अकरमा हमजा, फरखंदा अमजद, फौजिया खालिद चौधरी, मुजाहिद इस्लाम, मौसर रजा, मोहम्मद खालिद बशीर, मोहम्मद अरफान लतीफ़, मोहम्मद कामरान इकबाल, मोहम्मद मजहर महमूद और मुश्ताक अहमद दोल शामिल है। गोजरा के हल्का NA 105 से कागजात मुस्तरद होने वालों में से PTI के उम्मीदवार सामा हमजा, पीपल पार्टी के हाजी इसहाक, मोहम्मद अरशद नजमी और राना जवाद शामिल है। गोजरा के हल्का PP 119 से तकरीबन 22 के करीब उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा करवाए। गोजरा के हल्का PP 119 से कागजात की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद तकरीबन 19 के करीब उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार पाए गए। गोजरा के हल्का PP 119 से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 3 उम्मीदवारों के कागजात को मुस्तरद कर दिया गया, जिसमें उमर इफ्तिखार, सऊद चीमा और मोहम्मद अरशद शामिल है। गोजरा का हल्का PP 119 से कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के नाम असद जमान, हाफिज निसार, अली अजहर जमान, उस्मान अली चीमा, मोहम्मद खालिद मलक, नबीला मलक, मुजाहिद इस्लाम, साम अली, सैयद कैसर मीर शाह, मुश्ताक अहमद दौल, चौधरी खालिद जवेद, उकबा अली, मोहम्मद तालिब हुसैन, चौधरी बिलाल असगर, आमना बिलाल, मोहम्मद साकब, मोहम्मद मुबशर हुसैन, नदीम सरवर सिद्धू और मजहर हुसैन शामिल हैं। गोजरा का हल्का PP 120 से तकरीबन 30 के करीबी उम्मीदवारों ने इलेक्शन के लिए अपने कागजात जमा करवाए। गोजरा का हल्का PP 120 से उम्मीदवारों की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद तकरीबन 25 के करीब उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार पाए गए, जिसमें अजहर नदीम, अकबर अली, उम्मे फरबा, कदीर चौधरी, खालिद जवेद, साम अली, जुल्फकार अली, जुल्करनैन सतार, चौधरी तारक महमूद, अब्दुल कदीर अलवी, अरफान गफूर, अताउल्लाह हमीद, अली हैदर, अमैर हुसैन, फ़कीर महमूद, फौजिया खालिद, महबूब सुबानी, मोहम्मद खालिद बशीर, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद रज़ाक, मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद शुएब अनवर, मोहम्मद आसम एहसान, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद एहसन हसान, मोहम्मद मुहतसम सतार चौधरी शामिल है। गोजरा का हल्का PP 120 से तकरीबन 5 के करीब उम्मीदवारों के कागजात मुख्तलिफ वजूहात के तहत मुस्तरद कर दिए गए। गोजरा के तमाम हलकों के उम्मीदवारों को अपने साथ से छुपाने, अपनी कौमियत छुपाने और कीमती सामान की तफसीलात, जिसमें सोना, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल, ज़राई रकबा और रकम छुपाने पर उनके कागजात को मुस्तरद किया गया। जी जी खबर शामिल करते हैं ढरकी से। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक ढरकी के इलाके जोंग कॉलोनी के रहायशी गुलाम फरीद सोमरू ने अपने बेटे गुलाम फारूक, जो के 7 माह कबल घर से लड़ झगड़ कर अपनी बीवी के साथ हमसे ताल्लुक खत्म करके अपने ससुराल चला गया था। कुछ दिन पहले ढरकी के इलाके कुतुब टाउन के रहायशी लोगों ने ये इल्जाम लगाया है कि मेरे बेटे ने चोरी की है और वो इस मामले में मुझे तंग कर रहे हैं। लिहाजा मैं SSP घोटकी और IG सिंध से अपील करता हूँ कि मैं अपने बेटे से 7 माह कबल ही ला ताल्लुकी का इजहार कर चुका हूँ और मेरा इससे या इसके किसी भी मामला से कोई ताल्लुक। गुलाम फरीद सोमरो नालो आहे। न्यू कॉलोनी में वेठो आहियां। 11 ॿारनि मां हिकिड़ो पुटु छोकिरो वॾो आहे, कमाईंदड़ उहो हुयो। उहो मूंखे जेको न हिते रहंदो हुयो जेको, शादी कराई मां नियाणी ॼाई अथसि। ग़लति संगत जी हथ में अची वियो, सो मासां सही न हलियो रवैयो हुनजो। 7 महीने में लॾे वियो मां, 5-6 महीना थियण वारा आहिनि। वजह आई आहे बसि ग़लति संगत में अची वियो, माने चए को निकिरी वियो।
पोइ इन जे करे मां परेशान कंदो हुओ ॾाढो। मासूम ॿार हूंदा। हाणे को मसइलो उन कयो आहे, मूंसां न थियो आहे। उन कयो आहे त वॾो यार माण्हू मारे अचनि था, पोइ मां तुंहिंजो पुटु आहे, पोइ मां ला तालुक आहे, मां जुदा थी विया। साईं हाणे पंहिंजे सहुरनि ॾे रहे थो, हुते हाणे छा बि करे थो। मां उनखे चयुमि पुट खे बि चाचनि खे बि त भाई इन जबली घोड़ो आहे कि घर में रहण ॾे हिते मां सां गॾु। मां हथ को निकिरी वियासीं 7 महीने को वठी, हाणे पाण ॼाणनि छोकिरो हुयो अॻु में ई ख़राबु, भई रहंदो हुनखे शहर जो मुंहुं ॾेखारीनि थो, वेड़ो थी वियो, हाणे चोरियूं करे थो, वारदातां करे, हाणे मुंहिंजे ज़िम्मे न आहे। ऐं मूंखे मुंहिंजे वालिद साहिब बि सहुरे बि मुंहिंजे चयो मूंखे त भाई हाणे तूं न ॼाण मां ॼाणा, मुंहिंजो कमु ॼाण, तुंहिंजो कमु न आहे। वजह ग़ुलाम फारूक साईं मां हथ ॿधी बाबा चवां थो, अर्ज़ु कयां थो ऐं मासूम ॿार मुंहिंजे पुट सां मूंखे न मिलायो वञे, न ई मुंहिंजो सां को वजह आहे न वास्तो आहे। बराए महिरबानी बस वारनि खे, SP साहिब खे, DSP साहिब खे, कोरट सगोरी खे, बस वारनि थाणेदारनि खे मां अर्ज़ु महिरबानी करे मूंखे तंग कोई न करे। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। ऑन न्यूज के जिम्मेदार एंकर सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक अंधेर नगरी चौपट जिला में तहसील इंतजामिया और महकमा ज़राअत तोसी अमला भावनगर की गलत हिकमत अमली और जमींदार किसानों को खाद पूरी करने पर बेहतर मनसूबाबंदी न होने से भावनगर का किसान ख्वार हो गया। क़यामत सुगरा की निशानियां हैं। मंडियों में पैसे से भी चीज नहीं मिलती। हम मुसलमानों का मुल्क कहलाते हैं। जिला में काश्तकारों को गंदम फसल को लाखों बोरियों नाइट्रोजन यूरिया खाद की जरूरत है, जबकि गला मंडी भावनगर में खाद डीलर्स के पास सरकारी रेट्स पोर्टल पर थोड़ी मिकदार में खाद सप्लाई हो रही है। लम्हाला खाद ब्लैक हो गई और महंगे दामों फरोख्त हो रही है। कोई तदारुक ना है। दीगर आज हैदर स्टेडियम के बाहर लंबी लंबी लाइनों में सुबह से खड़े किसान सरापा एहतजाज थे। किसानों ने शिकायत की है कि असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी फलक शेर मनपसंद लोगों को नवाजने लगा। स्टेडियम से बाहर किसानों की लंबी लंबी लाइनें मौजूद एक कमजोर गरीब किसान गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लियाकतपुर 60 किलो वजनी धनी खग्गा तवज्जो का मरकज बन गया। मौसम की मुनासबत से खरीदारों का रश लगने पर दुकानदार भी खुश हो गया। तफसीलात हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट में। लियाकतपुर में 60 किलो वजनी धनी खग्गा शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। सर्द मौसम में लहू को गर्म रखने के लिए मछली का इस्तेमाल मुफीद तस्वर किया जाता है। दुकानदार का कहना था कि इस मछली का रेट मुनासिब होने और इसमें कांटा ना होने के बायस बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। दरियाई और बगैर कांटे वाली मछली होने के बायस इसकी मांग ज्यादा होती है। शहरियों का कहना था कि मार्केट में इस तरह की मछलियां कम मिलती हैं। बच्चों की ख्वाहिश पर मछली खरीदने के लिए आए हैं। लियाकतपुर के मशहूर धनी खग्गे ने मछली के शौकीन के लिए कांटे की शिकायत को दूर कर दिया और मछली का रेट मुनासिब होने के सोने पर सुहागा साबित हुआ। जी ये मछली, इसका नाम धनी खग्गा है। ये 1000 रुपये इसका रेट है और इसके अलावा जो इसमें कांटा नहीं होता, बच्चे छोटे हैं वो खा सकते हैं। ये मौसम के लिहाज से बहुत बड़ी गर्म मछली है और ये स्पेशल दरिया की है। पता है कि सर्दियों का मौसम है तो बड़ा गोश्त छोटा गोश्त तो हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो धनी खग्गा आया जी, इसमें एक तो फ़ायदा होता है, ये कांटा नहीं होता, तो हम बड़े शौक से ले जा रहे हैं। बच्चों ने फरमाइश की थी कि धनी खग्गा जो है ना घर में ले गया है, तो लेके जा रहे हैं। रेट भी बड़ा माकूल है और इसका जायका भी बड़ा मज़ेदार होता है। मलकवाल से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर चौधरी अकील अशरफ ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली। सरगोदा के स्पोर्ट और गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मॉडल टाउन लाहौर में तदरीसी शोबा सहाफ़त में खदमात सर अंजाम देने वाले उस्ताद असिस्टेंट प्रोफेसर चौधरी अकील अशरफ ने जामिया सेंट्रल पंजाब से इब्लागियात में PhD कामयाबी से मुकम्मल कर ली। डिग्री के हसूल के लिए उन्होंने सनफी शनाख्त की तामीर में फेसबुक पर एजेंडा तरतीब देने के नज़रिए का इतलाक के अनवान से मुकाला तहरीर किया, जिसमें वालिदैन के बदलते किरदार को तहकीकी पहलुओं से परखा गया है और मर्द और औरत दोनों के बदलते किरदार को ख़ानदान की तरक्की और खुशहाली में मावन करार दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में मुनाकिदा 26वें कन्वोकेशन में चौधरी अकील अशरफ को डिग्री से नवाजा गया। इनकी इस कामयाबी पर तुलबा, साथी, उस्ताज़ा और दोस्तों ने इन्हें मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाज़िया रहे कि UCP के इस कॉन्वोकेशन में कुल 30 PhD स्कॉलर फारिगुल तहसील हुए हैं। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर के शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों को गिरफ्तार ना किया गया। प्रेस क्लब से जामे शहादत तक रैली सहाफ़ियों को कातलों की गिरफ्तारी तक एहतजाजी तहरीक जारी रखने के अज़म। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सक्खर के शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सक्खर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज का सिलसिला
39 रोज से जारी सक्कर प्रेस क्लब से शहीद जान मोहम्मद की जाम शहादत तक FUJ के मरकजी रहनुमा लाला असद पठान की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई है, जिसमें कातलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारेबाजी की गई। एहतजाज में SUJ के सदर इमदाद बोजदार, सैयद अहकर रिजवी, प्रेस क्लब के नौमुंतखब सदर आसिफ जहीर लोधी, जनरल सेक्रेटरी शौकत नारी, शहजाद ताबानी, लाला शहबाज खान, सहरिश खोखर, नसरुल्लाह वसीर, जावेद जतोई, कामरान शेख, जलालुद्दीन भैयू, उमर सोमरू, खालिद भांभन, हसीब शेख, अंस घांगरू, मुजीब वरिंद, मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी, अजहर दायू, जहांजेब वसीर, अब्दुल गफूर शेख, औरंगजेब माकू, फरकान खोसू, उबैदुल्ला शेख, काशिफ पलपूटो, मुबीन खान, सजाद शाह, फारूक सोमरू, अंस मलिक, जवाद शाह, यार मोहम्मद सोमरू, नादर खान, फैसल अराई, अली खोसू, अकील अहमद, नादिर संजरानी, नासिर जाफरी, शाह वली, मोहम्मद अली सोलंगी, इमदाद कुलोड़, इशफाक खोसू, फरीद सोमरू, बख्श अली पलपूटो, बाबर खोखर, असगर अब्बासी, मजीद नवाज मुगल, सलाहुद्दीन समेजो, GM शेख, अदनान शेख, तुफैल वस्तड़ू, असामा तलत, अमजद अब्बासी, जमील सागर घांगरू, माजिद मंगी, फजल रहमान कुरैशी, मसूद जैदी, जावेद घनियो और तमाम मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर लाला असद पठान और दीगर ने कहा कि शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के असल कातलों की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत और पुलिस ने यकीन दहानी करवाई है कि अब तक कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं जिसकी वजह से कोई नतीजा निकले। वो समझ रहे हैं कि सहाफ़ी चंद तक एहतजाज के बाद खामोश हो जाएंगे, लेकिन हम इन्हें वाज़िया कर रहे हैं कि हम खामोश नहीं बैठेंगे और कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाने तक एहतजाजी तहरीक जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से एहतजाजी तहरीक जारी रखेगी। ये मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरा और सिंध भर में प्रेस क्लबों के बाहर लामती भूख हड़ताल के बाद सक्कर प्रेस में आल सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन का इनेकाद 6 जनवरी 2024 को किया जाएगा, जिसमें एहतजाज के हवाले से मजीद हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए लोग मछली का शिकार और इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसमें हर किस्म के प्रोटीन पाए जाते हैं। भिक्की नहर में लोग मछली का शिकार करते हैं और अपने खाने के लिए घर भी ले जाते हैं और अपनी रोज़ी रोटी भी चलाते हैं। मज़ीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिक्की नहर पे। यहाँ लोग अपनी मजदूरी और खाने पीने के लिए मछली पकड़ते हैं। मेरे साथ कुछ मछेरे मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं वो मछली पकड़ के क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैं इत्तफाक। सर ये बताइएगा, ये जो आप मछली पकड़ते हैं फिर इसको सेल करते हैं या घर लेके जाते हैं, ज़रा बताइएगा। भाई कुछ सेल कर देते हैं, कुछ खाने के लिए घर भी ले आ जाते हैं। तो एक दिन में कितनी मछली पकड़ लेते हैं आप? अभी तो ये पकड़ी है जो सुबह सुबह हैं, अभी 10 किलो पकड़ी है बस। तो सारा दिन मतलब आप ये पकड़ेंगे या बस यही जो पकड़ी है वही है? नहीं, सारा दिन पकड़ेंगे। तो रात तक कितनी पकड़ लेते हैं आप? अभी 10-20 से मतलब आपकी दिहाड़ी बन जाती है? हाँ, शुक्र अल्लाह का, दिहाड़ी बन। ये शौक का शौक है और रोजी की रोजी है। ये शौक भी ज़्यादा है, रोजी भी है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक साहब ये बताइएगा, ये जो कितनी देर से आप मछली पकड़ रहे हैं? तकरीबन 15-20 साल हो गया है। तो ये आपके बाल बच्चों की रोजी भी चलती है और खाने के लिए भी चलती है? रोजी भी चलती है और खाने वास्ते भी लैके जाइदी है, अल्लाह की मेहरबानी दे नाल। तो एक दिन में आप कितनी पकड़ लेते हैं? ये कोई 8-10 किलो फड़ लईदी है ते बाकी है कि साल चौदे ने 4-5 दिन आते हैं सिर्फ, यानी कि 25 दिसंबर ਨੂੰ ਨਾਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਦਿਨ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਭਦੀ ਸਾਰੀ ਨਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਫੜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਫੜਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਵੇਚ ਵੀ ਲਈਦੀ ਹੈ। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आप भी मछली पकड़ते हैं? जी सर। तो बताइएगा आप ये कितनी मछली आप पकड़ लेते हैं? पकड़ लें तो 5-10-15 किलो फड़ लईदी है ते दिहाड़ी दे विच घंटा 2 लग ही जाता पड़न तो बकाया फिर बाहर भी जाती है। मतलब 1 घंटे में 5-10 किलो आप पकड़ लेते हैं? पकड़ लेते हैं। दिहाड़ी भी बन जाती है, खाने के लिए भी बन जाती है। शुक्र अल्लाह का। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नहीं मच्छी वाला। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? आसफ अली। आसफ अली, ये बताइएगा कितनी मछली पकड़ते हैं एक दिन में? सर ये 2 घंटे का टारगेट होता है इसका। जब मछली ऊपर आती है वो फिर पकड़ लेते हैं और रिस्क भी अपना बन जाता है और बेच भी देते हैं, ज़ाया नहीं जाती माशाल्लाह। इसलिए बस शौक भी पूरा हो रहा है हमारा, उन शिकार भी कर रहे हैं। तकरीबन 4-5 दिन होते हैं हमारे ये,
उससे एक साल में बस? हाँ, 1 साल में जी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये भिखी नहर पे खड़े होके इनके 4 से 5 दिन होते हैं जो मछली पकड़ते हैं, अपना शौक भी पूरा करते हैं और अपने बच्चों के लिए ये रिज़्क भी तलाश करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद का सर, डिप्टी ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़ लाहौर। जी खबर शामिल करते हैं रनाला खुर से। एसटीपी और रनाला सर्कल एएसपी अदनान गिल ने तहसील प्रेस क्लब के वफ्द से मुलाकात की। इस मौके पर इनका कहना था कि धुंध में बढ़ती हुई जराइम की वारदात को कंट्रोल करने और मंशियात के खात्मा के लिए तमाम तर वसाइल बरोहकार लाए जा रहे हैं। इसी पर मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद अफजल कम्बो की इस रिपोर्ट में। एसटीपीओ अदनान गिल ने तहसील प्रेस क्लब के वफद से गुफ्तगू करते हुए कहा, जराइम का खात्मा और इंसाफ की फराहमी मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। सर्कल भर में मंशियात के खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल बरोहकार लाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे जितने भी आईजी पंजाब के इनिशिएटिव चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा फोकस हमारा उसकी तरफ से है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी की तरफ से है। उसके अलावा जो है धुंध में बढ़ती हुई वारदात के हवाले से सबसे बड़ी हमारी तरजीह है कि ये धुंध में जो वारदात बढ़ जाती है उसको हम किसी तरीके से कंट्रोल करें। उसके लिए हमने ठिकरी पैरा इंश्योर किए, हमारी पेट्रोलिंग जीटी रोड पे और बाकी सारे जितने भी इम्पोर्टेंट रोड्स हैं, लिंक रोड्स हैं, वहाँ पे हमारी पेट्रोलिंग होती है हर वक्त, ताकि हम जो बढ़ती हुई क्राइम की वारदात है उसको हम कंट्रोल कर सकें। बुनियादी तौर पे आईजी साहब का ये जो सिप्स का इनिशिएटिव है, इसका मकसद ये है कि हम जो थानों में जो एक कोई भी बंदा आता है या कोई भी साइल आता है, वो खौफ वाले मंजर से निकल के उसको एक सर्विस डिलीवरी की तरफ हम लेके जाएं। थानों के लुक को चेंज करने का मकसद बेसिक ये है कि हम जो थानों के हवाले से सोच है, जो थाना कल्चर है, उसको चेंज किया जाए। इनका मजीद ये भी कहना था, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की तरफ से थानों के माहौल को यकसर बदला जा रहा है। इनको जदीद और मॉडर्न तर्ज पर बनाने के साथ साथ पुलिस को अवाम फ्रेंडली बनाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। डडियाल से कासिम सारी की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू टाउन ओना किसी मसीहा का इंतजार करने लगा। न्यू टाउन में मसाइल का अनबार, हुकूमत के बड़े दावे लेकिन अमली काम सिफर। तफसील के मुताबिक मुतासरीन मंगला डैम ने अपने आबा अजदाद की कब्रों दोबारा कुर्बानियाँ दी। मुतासरीन मंगला डैम के साथ वापटा का दूसरी मरतबा धोखा। हुक्मरान जमात समेत अपोजिशन की मुकम्मल खामोशी, लम्हा फिक्रिया, करप्शन करने वालों के खिलाफ कड़ा एहतसाब का नारा, बयानात तक महदूद। करप्ट टोला मुतासरीन की लाजवाल कुर्बानियों की बावजूद दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। न्यू टाउन ओना के अंदर मुतासरीन के मसाइल जूं के तूं। मौजूदा हुकूमत भी साबिका हुकूमतों की तरह खामोश। वापटा का रवैया नाकाबिले फ़हम। पानी की सतह बुलंद होने के बाद वापटा मुतासरीन को भूल ही गया। सरकारी इमारतों के काम अधूरे पड़े हैं। स्कूल, कॉलेज, डिस्पेंसरियाँ, दुकानें, कम्युनिटी हॉल की इमारतें नामुकम्मल। ढांचे भूत बंगले की शक्ल अख्तियार करने लगे। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर की साबिका दौरे हुकूमत की संग बुनियाद की लगी तख्ती मुतासरीन का मुंह चढ़ाने लगी। मुतासरीन मंगला ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि वो काम छोड़कर फरार होने वाले ठेकेदारों को वापस लाएं और इनसे काम मुकम्मल करवाएं। न्यू टाउन में खुली कचहरी लगाकर इनके मसाइल सुने जाएं। बहावलनगर से डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया में भी इंतखाबात की गहमा गहमी जोरों पर है। हल्का NA 166 से उम्मीदवार MNA पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन रहीम बख्श कराई मैदान में आ गए। उम्मीदवार MNA रहीम बख्श कराई ने बेहतरीन जलसे का एहतमाम किया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। उम्मीदवार MNA रहीम बख्श कराई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं रहीम बख्श कुरई मौजूदा झांगड़गर बिदा उम्मीदवार पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की तरफों कौमी असम्बली का मैं दाखिला करवाया। मैं इन्हें गरीब आवाम की खातर जदोजहद करना पाया। मैं यो कुछ पुछदा जो साडियां महरूमियां कितनी हैं। साड़ी महरूमी पहले साडा पानी पूरा नहीं किया गया। जड़ा असा 9 महीने साड़ी नहर को देवन, जड़ा 3 महीने गंदम का पानी होवे ते मेरा किसान जरा बहाल थी वजे। साडा पानी 3 महीने ओ चटे। दूजी गाल है जरे बिजली के बिल 5 रुपये 35 पैसे तू लाते आज 70 रुपये यूनिट थी गए। 70 रुपये यूनिट मेरा गरीब भरेंदा बैठे। घर का बिल उनका क्या बच्चा पे। मैं इहदे वास्ते जद्दोजहद की। मैं अपील करना अपने हल्के 166 के उत्ते जो मेरे गरीब मजलूम को मैं इतला देना, मेहरबानी करते अपना ई दफा सोच समझ ते फैसला करो। ये जरे पीले गाले गाड़ियां ले आए वदन सिर्फ साकू लुटते चले वेंदन। साड़ी असम्बली हाल दे विच
कौमी असैंबली दे विच साडी किराई करने आवाज़ उठाई, साडी महंगाई दे बारे, साडी मजलूमियत दे बारे। मैं तमाम हल्के वाले को, पूरे हल्के को दावत देना, मैं रहीम बशकुरई, मैं गरीब किसान इतिहाद हाँ, मैं तुहाडी वास्ते जद्दोजहद लई वधां। पानी दे उत्ते, खादों दे उत्ते, ज़राई टैक्स दे उत्ते, जेह्ड़ी साडी जिन्ने से असा जेले वेचण में नूं साडे को ताजर घिंदा कोई नहीं, जेड़ा मेरा गरीब देवण में दे हुंदे को घिंदे कोई नहीं। क्या साडे उत्ते जुल्म पछा पे? मैं मेहरबानी करते पूरे अपने हल्के को अपील करना, ई दफा वोट समझते निवाहे, जेड़ा अपना आवे उको देखते दियो। मैं गरीब भी उठा खड़ा, मैं सारे हल्के को अपील करना, चाहे ओश शरीफ है, चाहे बेट आलन, चाहे आमदपुर आलन, चाहे कोटले मुसे खालन, चाहे चौक बट्टे आलन, जितनी मेरे हल्के दिन मैं सारे को अपील करना। मैं कितनी पहुंच सकता, कितनी नहीं पहुंच सकता। आज मैं अपने इलाके को इकट्ठा किते, अपने इलाका मेरे नाल है, जितनी मेरे डा बारह मौजे आखन दे गिन सारे नाल भरपूर में नल कोशिश कर रहे पेन। मैं तमाम इलाके को आदा ई दफा डेग गिनो, गरीब नाल हिमायत करो। बल डेग गिना है, ये सिलाई मशीना मिलते, नलके मिलते, वड्या वड्या चीज़ा मिलते, सारे खाते भाजवे ने। मेरे गरीब को आज तक 1 रुपया नहीं मिला। मेरा अल्लाह से मेरे तो मेहरबानी की, मैं है के गरीब दा कुंडा खड़कात रेसा, पहले पानी 9 महीने का गिनसा, बल बेटा ले जितना पानी क्या नहीं उतना प्लेटा घेंटे हो सा। जेरे गरीब मजलूम दा जो सीधे कम मैं सारे कम घेन घेनते ने गरीबे को ऐसा। मैं मेहरबानी करना हर इलाके को, हर मौजे वाले को, हर बस्ती वाले को, जे तो नहीं मैं नहीं पहुंच सकता, मेहरबानी करते गरीब गरीब दा वर्क करे। ये दिखावे ने जगीरदारे को जिवे गड्डिया घेनते हैं, इवें खाली घर वंजन, इन्हें को पता लग से अगले इलेक्शन ते साकू गरीब कामयाब करना या अमीर कामयाब करना। मेहरबानी मैं सारे का शुक्रिया अदा करना जो मेहरबानी करते। ई दफा दिल दे उते पत्थर रखो, सेल रखो, फैसला करो। इन्हें को पता लग सा जगीरदारे को जब ये गरीब दी क्या औकात है तो अमीर दी क्या औकात है। मेहरबानी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।